Dear children, welcome to All in English class. As we learned about the composition and its types, that is, descriptive and narrative composition in previous lectures. But to write a good composition, we should have good vocabulary of words and phrases. Moreover, dictionary plays an important role in increasing vocabulary. So, how dictionary plays its role? We learnt it from today's lecture. So, dear children, today we learn about dictionary and its use. Let's start. What is dictionary? A dictionary is an alphabetical listing of words and their meaning. It is used to describe the meaning of a word. डिक्शनरी एक वर्णमाला क्रम के अनुसार शब्दों और उनके अर्थों की सूची है। यह शब्दों के अर्थों के वर्णन के लिए उपयोग में लाई जाती है। इट कैन बी यूज टू लुक अप द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। इसका प्रयोग शब्दों के अर्थ ढूंढने के लिए किया जाता है। वी यूज डिक्शनरी टू चेक द स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड। इसकी सहायता से हम शब्दों की वर्तनी की भी जांच कर सकते हैं। इट मे आल्सो गिव अदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स, नेम्स और फैक्ट्स सच एज काइंड ऑफ वर्ड, इट्स ओरिजिन एक्सेट्रा। यह हमें शब्दों, नाम और तथ्यों जैसे शब्दों के प्रकार, उद्गम इत्यादि की जानकारी भी प्रदान करती है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग अवर वोकेबलरी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमारे शब्दकोश में भी वृद्धि करने में सहायता करती है। इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट बेटर, improve your communication and improve your slang by making sure you are using words correctly. इसकी सहायता से हम अपने विषय के बारे में अधिक समझ बना सकते हैं। इससे हमारे वार्तालाप और बोलने के तरीके में भी सुधार होता है। इट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड फंक्शंस। यह शब्दों के उच्चारण, उनका व्याकरण संबंधी प्रयोग व कार्य के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। Dear children, let's know about the types of dictionary. There are about 7 types of dictionary in general. Bilingual dictionary, monolingual dictionary, etymological dictionary, crossword dictionary, rhyming dictionary, pocket or mini dictionary, and thesaurus. Let's discuss one by one. Bilingual dictionary. It gives words in two languages. Each language is grouped alphabetically in separate halves of the book, with translation into other language. For example, English Hindi dictionary, English French dictionary, etc. बच्चों, इस डिक्शनरी में दो भाषाओं में शब्द का अर्थ दिया होता है। एक तो जिस डिक्शनरी को हम यूज़ कर रहे हैं उसी भाषा में, और एक उससे दूसरी भाषा में। मान लीजिए जैसे इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, उसमें वर्ड का अर्थ इंग्लिश में पहले दिया होगा और उसके बाद हिंदी में भी लिखा होगा। नाउ मोनोलिंगुअल डिक्शनरी, it uses same language for the words and their definition. For example, English dictionary. बच्चों, यह शब्द का अर्थ उसी भाषा में दर्शाती है। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी है तो इंग्लिश वर्ड का अर्थ इंग्लिश में ही दर्शाया होगा। नाउ etymological dictionary. It traces a word's development over time, giving historical examples to show changes. For example, Oxford English Dictionary, वेबस्टर डिक्शनरी एक्सेट्रा। इटमोलॉजिकल डिक्शनरी में वर्ड के ओरिजिन के बारे में, उसकी हिस्ट्री, अदर लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होने की इत्यादि के बारे में दिया होता है। और यह अभी ऑक्सफोर्ड ने क्रिएट की है और एक वेबस्टर डिक्शनरी इसमें आई है। नाउ फोर्थ वन इज क्रॉसवर्ड डिक्शनरी. It has words grouped together by number of letters in the words to help people find words of certain length to complete their crossword puzzles, etc. For example, Colon dictionary, etc. बच्चों, ये जो क्रॉसवर्ड डिक्शनरी है हमें क्रॉसवर्ड पजल इत्यादि ढूंढने में हेल्प करती है। इसकी सहायता से हम क्रॉसवर्ड के जो पजल्स में जो वर्ड्स दिए होते हैं वो हम इसमें ढूंढ सकते हैं। Rhyming dictionary. It is one where words are grouped together by their end sounds like cat, mat, pat, etc. They rhyme, use more frequently in poetry than prose as an effect. बच्चों, इस प्रकार की डिक्शनरी ज़्यादातर पोएट यूज़ करते हैं और ये पोइट्री के लिखने के काम आती है। नाउ
Sixth is pocket or mini dictionary. When a dictionary is small in size, then it is called mini dictionary or pocket dictionary. Now, thesaurus. It is a book or dictionary that organizes words by categories like synonyms or antonyms and concepts. So synonyms and near synonyms will grouped together. So this is about the types of dictionary. बच्चों, अब हम डिक्शनरी में किसी अर्थ शब्द का अर्थ ढूंढते हैं तो उसके आगे एब्रीवेशन लिखे होते हैं। इन एब्रीवेशन का अर्थ प्रत्येक डिक्शनरी में पहले पन्ने पे दर्शाया होता है। हम वहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एडजेक्टिव एडीजे का अर्थ एडजेक्टिव होता है, एडीवी का अर्थ एडवर्ब्स होता है। सिमिलरली अगर वी आई लिखा हो तो उसका अर्थ वर्ब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। अगर वी टी लिखा है तो उसका अर्थ वर्ब ट्रांजिटिव होता है। इस प्रकार आप एब्रीवेशन डिक्शनरी के पहले पन्ने पे ढूंढ से देख सकते हैं। आओ बच्चों, सबसे पहले हम बायलिंगुअल डिक्शनरी के प्रयोग करना सीखें। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक्साइट शब्द लिखा है। जो एक वर्ब वर्ड है, क्योंकि इसके आगे वीटी लिखा है। वीटी मीन्स वर्ब ट्रांजिटिव। इसके बाद इसका अर्थ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इससे एक्साइटेडली और एक्साइटमेंट शब्द बने हैं, जो कि एडवर्ब और नाउन शब्द है, क्योंकि इनके आगे एडीवी और एन लिखा है। तो बच्चों, इस तरह एक शब्द का प्रयोग डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हम कर सकते हैं और हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है। यहाँ हम एक शब्द से 3 शब्द जान गए, दैट इज एक्साइट, एक्साइटेडली एंड एक्साइटमेंट। आओ बच्चों, अब हम जाने कि डिक्शनरी में शब्द कैसे ढूंढें। यह तो आप जानते ही हैं कि डिक्शनरी में शब्द वर्णमाला क्रम के अनुसार होते हैं, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लो हमने एक्सक्लूसिव शब्द ढूंढना है, तो सबसे पहले हम डिक्शनरी में ई अल्फाबेट खोलेंगे। उसके बाद दूसरा अल्फाबेट यानी ई एक्स देखेंगे। उसके बाद हम उसी सीक्वेंस में तीसरा अल्फाबेट ई एक्स सी देखेंगे। और हमारे पास सामने जो पन्ना दिखाई दे रहा है वह पन्ना डिक्शनरी में खुल जाएगा। इसके बाद चौथे अल्फाबेट को वर्णमाला के अनुसार देखते हुए हम इस शब्द को खोजेंगे। तो बच्चों, आपको इस पन्ने के बाईं तरफ नीचे यह शब्द दिखाई देगा। अतः इसी क्रमानुसार हम डिक्शनरी में शब्द खोजते हैं। अगर यहाँ चौथे वर्ण को जांचते समय भी यह शब्द नहीं मिलता तो हम इसी तरह अगले वर्ण मतलब 5वें वर्ण का प्रयोग करते हुए शब्द को खोजते हैं। तो बच्चों, हमें जैसे कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव शब्द मिल गया। अब हम इस शब्द का अर्थ इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस शब्द के आगे एडीजे लिखा है, मतलब एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव शब्द है। आओ देखें इससे और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। इससे एक्सक्लूसिवली और एक्सक्लूसिवनेस 2 शब्द और बन सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारी वोकैबुलरी में इसके अर्थ के अलावा शब्दों के बारे में भी अधिक वृद्धि हो गई। अतः इस प्रकार हम डिक्शनरी में शब्द, उसके स्पेलिंग और अर्थ ढूंढ सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट मोनोलिंगुअल डिक्शनरी। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी की विशेषता यह है कि मोनोलिंगुअल डिक्शनरी में शब्द के अर्थ के साथ
उसका वाक्य में भी प्रयोग करके दर्शाया होता है, जबकि बायलिंगुअल डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता है। इससे शब्द के प्रयोग के बारे में और अधिक समझ बढ़ जाती है। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में रन शब्द को देख रहे हैं। जब रन शब्द वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाया गया है। इसमें एज ए वर्ब रन का अर्थ है मूव एट ए स्पीड फास्टर देन वॉक, और इसको वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, शी रैन द लास्ट फ्यू यार्ड्स एंड ब्रीथिंग हैवीली। इसी तरह जब रन को हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तब इसका अर्थ बन जाता है एन एक्ट और स्पेल ऑफ रनिंग, और वाक्य में प्रयोग करके इसमें दिखाया गया है आई यूजली गो फॉर रन इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार जब रन को हम फ्रेज के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे इधर कम रनिंग, तो इसका अर्थ बन गया बी ईगर टू डू व्हाट समवन वांट्स, और वाक्य के रूप में प्रयोग करके दिखाया गया है he had only to crook his finger and she would come running। और इसी तरह जब फ्रेज में ऑन के रूप में ऑन द रन इसको यूज करा तो इसका अर्थ बन जाता है ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड, और वाक्य के रूप में है अ क्रिमिनल ऑन द रन फ्रॉम द FBI। इसी प्रकार जब रन को हम एज अ फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो इसके अर्थ में भी बदलाव आ जाता है। जैसे इधर है रन अक्रॉस, तो इसका अर्थ बन गया मीट और फाइंड समवन बाय चांस, आई जस्ट थॉट यू माइट हैव रन अक्रॉस हिम बिफोर। इसी तरह अगर रन अलोंग है तो इसका मतलब हो गया गो अवे, रन अलोंग नाउ देयर इज अ गुड गर्ल। तो बच्चों अब आप देख रहे होंगे कि अंत में शब्द के ओरिजिन के बारे में भी लिखा है, यानी इसका ओरिजिन ओल्ड इंग्लिश रिनिन था, फिर जर्मनी में रीना हुआ क्यों, और अब करंट में RUN रन में बनकर 16 सेंचुरी में यह प्रयोग होने लगा। क्योंकि यह पन्ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है, यह एक मोनोलिंगुअल डिक्शनरी के साथ इटोमोलॉजिकल डिक्शनरी भी है, अतः इटोमोलॉजिकल डिक्शनरी में इस तरह का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। So dear children, this is all about dictionary and its use. Dear children, I suggest you first use bilingual dictionary, thereafter use monolingual and etymological dictionary so that it helps you to command on language easily. Dear children, hope you understand all about this very clearly. Now, you are able to search any word's meaning and its use in grammar from the dictionary very easily. Dear children, there is a worksheet along with the video attached. Kindly solve the question in the worksheet so that you can develop more understanding about the topic, that is dictionary and its usage. Thank you. Be happy and safe.